बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है और हम सब का मन अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें तो जीवन की चलती रहती हैं, इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। Okay, so as we start now, I would first like to acknowledge the traditional owners of this land on which we celebrate today, and also give our respect to their elders, past, present, and emerging. चलिए तो आज शुरू करते हैं फिर यहाँ से। माननीय अतिथिगण, हमारे सामने हैं BSL की प्रिंसिपल मिस जूडी बेनिक जी, हिंदी निकेतन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, प्रदीप जी, और हमारे कॉन्सुल जनरल तेज कृष्ण जी भी आ ही रहे होंगे, कहीं रास्ते में है, शायद ट्रैफिक की वजह से अटक गए हैं, दूसरे प्रोग्राम में उनको जाना था, लेकिन जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। सभी BSL की सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस समारोह में। उसके साथ ही मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। मेरा नाम चंद्रा अभिष्ट है। मैं यहाँ पर वाइस कॉन्सुल के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर अभी हमारे कार्यकारी कॉन्सुल अध्यक्ष नहीं है, तो उनकी जगह मैं आप सबको संबोधित कर रही हूँ। इंडियन कॉन्सुलेट मेलबर्न की तरफ से मैं मिस जूडी बेन, जो BSL की प्रिंसिपल हैं, रीना दुबे जी जो हिंदी निकेतन के अध्यक्ष हैं, इन दोनों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। इस प्रोग्राम को करने के लिए यहाँ कॉन्सुलेट में धन्यवाद आप दोनों का, और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ आए हैं। वैसे तो रीना जी ने हिंदी के महत्व पे सभी को पहले अपने विचार साझा किए हैं, मैं भी थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से 2 शब्द जोड़ना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अनेक उन्नत और समृद्ध भाषाएं हैं, परंतु हिंदी जो है सबसे व्यापक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। विश्व की प्राचीन और सबसे सरल भाषाओं में से एक है हिंदी, और इसको यह अग्रिम स्थान भी मिला है। यह भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। जैसा रीना जी अभी सभी को समझा रही थी, यह हमें अपने जड़ों I'll do my best to communicate my best wishes to you. It's just a joy to be able to celebrate with you the achievements of our Year 12 students last year. The fact that these students have studied right up to the highest level is a real credit to them, and I want to take my hat off not just to the students for their tenacity in staying with the program for that many years, but also to you as parents for your work with them, and also the community members. I can tell from tonight, I haven't had the smile on my face, my cheeks aren't aching from smiling at the beautiful understanding that your children have of their culture and their language and how they're intertwined. And it's so important for us as a fabric of society, that melting pot that you spoke about earlier on.
what a wonderful place it is to live and work in Melbourne in these days when we have that acceptance. And the culture that I grew up in and watching it change over time is just fantastic. Really, really wonderful for us. At the BSL, we are now in our 90th year of providing language classes for people who come to Australia. Our newest language this year, I think, is Burmese. So we welcome our Burmese community for the first time. And that's part of our response always, is to look at where the immigration is happening from the particular areas and try and respond as best we can within the limitations of our budget. To be able to accommodate those people. So we have running about 49 languages, I think, and over 700, almost 800 classes across Victoria. And it's a really mighty effort. And we're really proud to have the Hindi community as part of that. You are such a large, very accepting and welcoming community, and our teachers really love their work. Many of them are working full-time during the week and then getting up on a Saturday to just make sure that your language and your culture stays alive. So please, I know the Year 12 students will do that, but please don't forget to thank them for their hard work as well. And for our Year 12 students, now that you've made this wonderful achievement and hopefully you're out in the world pursuing the next part of your career, you have now got that responsibility from your community to get back to it, don't you? To enhance it, to keep it going forward. Because we know that the language that you've achieved and the results that you've achieved, they're just a moment in time. And if we want that, you want that to continue, then please get back to your community and don't forget where you've come from. Don't forget those wonderful moments that you've had over that journey, because it's really important. Otherwise, we see what happens with some of the languages, they start to die off. And we don't want that to happen. We want it to stay vibrant and youthful. And looking at these lovely little people, you know, the tiny little ones today, we want to see them be the people who come through. So that's my challenge to you as Year 12 graduates. Congratulations. But welcome to the world where you've got responsibilities now. And I think that's really important. We hope you have a wonderful... अरे चुटकुले नहीं, मैं आपसे चाय पर चर्चा करने आया। तो चलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि चाय इतनी मशहूर क्यों है? मैंने रिसर्च किया है, क्योंकि चाय पीते पीते मैं और क्या करता ना, और मुझे पता चला कि चाय इतनी मशहूर है क्योंकि इसका पहला अक्षर च है। तो देखो, चाय के साथ हम चाय को हमेशा चुस्की लेकर पीते हैं, और चुस्की का पहला अक्षर क्या होता है? बताइए। च। तो मान लो चाय की स्ट्रेटेजी तो बड़ी ही स्ट्रांग है, पहले ही अक्षर से सबको कंफ्यूज कर देता है। पर दोस्तों, चाय तो ट्रूली ही वीआईपी है। इसे चपरासी से लेकर चेयरमैन तक सब पी लेते हैं, और चपरासी और चेयरमैन इन दोनों का पहला अक्षर क्या होता है? च। तो दोस्तों, एक और सीक्रेट सुनो। तो चाय के साथ हम हमेशा चर्चा करते हैं, और चर्चा के दौरान हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें करते हैं, और ये दोनों चीजें क्या हैं? चिंता और चुगली। तो चर्चा, चिंता, चुगली, इन तीनों का पहला अक्षर क्या होता है? च। अब दोस्तों, लोग तो चाय के नाम पर तो चुनाव भी जीत जाते हैं। जैसे हमारे प्रिय मोदी जी चाय वाले से पीएम बन गए, और ये सब चाय का ही तो कमाल था। तो चाय ने तो पूरी दुनिया का ही प्लान बदलना है, और चुनाव का पहला अक्षर क्या होता है? च। और दोस्तों, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए, एक वार्निंग है कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए और उनसे आप चाय पूछना भूल गए, वो चिढ़ जाएंगे, और चिढ़ने का पहला अक्षर क्या होता है? च। और जब हमें चाय ना पीनी हो, मतलब गर्मी वाला दिन, ह्यूमिडिटी वाला मौसम, तो हम क्या करते हैं? हम चुस्की पे चुस लेते हैं, और चुस्की का पहला अक्षर क्या होता है? सब बोलिए। च। तो दोस्तों, चाय ये एक लौता
ऐसा चमत्कार है जो छोटे से लेकर बड़े तक सबको सुकून देता है। और आज मैंने कितने शब्द किए संबंधित चाय के साथ, जिन सब का पहला अक्षर क्या था? च। और दोस्तों आखिरी बात ये है कि चंदू की चाचा को चांदनी चौक में चांदी की चमच से चटनी नहीं चाय चटाई। धन्यवाद दोस्तों। चाय पी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में छोटे छोटे बच्चे कैसे हिंदी सीख रहे हैं। चलिए एक झलक आपको आज दिखाते हैं। व्यंजन सीखेंगे क से लेकर जो तक। हाँ, क से कर्म करते जाना, फल की चिंता तुम मत करना, ख खुदीराम भोसा बनना, ख से खाटू श्याम को भजना, ग से गणेश लिखते गीता, पति परायण देवी सीता, घ घनश्याम के गुण गाना, अमो खाली कह के ताली बजाना, चौथे चक्र चलाते कृष्णा, छ छत्रपति शिवाजी राणा, जो जगन्नाथ धाम बड़ा सुंदर, जो से झंडा ऊंचा रहे हमारा, यो खाली कह के ताली बजाना, चौथी का माथे पे लगाना, ठाकुर को भोग लगाना, दो डमरू ढो ढोलक बजाना, गणों से होता बाण चलाना, तम सोमा ज्योतिर्गमय, थल जल नभ, दो दसरा त्योहार मनाना, धो सा धर्म बढ़ाना, नौ से नारायण नारायण नारायण, परमात्मा प्रहलाद को बजाते, फागुन के महीने में ब्रह्मांड बनाते, सृष्टि के आरंभ में भौ से भगत सिंह और भगवान, भौ से महाभारत सीख महान, भौ से यज्ञ करते रहना। और आज मैं 2 कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है रब के साथ 2 बातें। मिल जाए जो रब तू मुझको, तो पूछो बिठाकर तुझको, तुझको अपने पास बिठाऊं, खरी खोटी में कह सुना। ये जो सारा बंटवारा किया था, क्या तब तूने भांग पिया था? याद तो रब भी छोड़ दे, नहीं तो सबको एक जैसा कर दे। कईयों के घर महल चुबारे, कईयों का जंगल जो धीमे तेरा, कईयों के घर जगमग करते, कईयों के घर घना अंधेरा। या तो रब्बी छोड़ दे, नहीं तो सबको एक जैसा कर दे। कईयों के घर पुत्र और पौत्र, कईयों के घर कोई लाली नहीं, कईयों के घर भरा सोना और चांदी, कईयों के कानों में बाली भी नहीं। या तो रब्बी छोड़ दे, नहीं तो सबको एक जैसा कर दे। कईयों के सूट साड़ियां सजती, कईयों के पास नहीं फटी हुई धोती, कईयों के बैंकों में बंडल, कईयों के पास नहीं अखनी खोकी। या तो रब्बी छोड़ दे, नहीं तो सबको एक जैसा कर दे। या तो रब्बी छोड़ दे,
नहीं तो सबको एक जैसा कर दे। चाहूंगा देर से आने के लिए, but there were some official obligations which delayed me actually, but I left the other event in between. और मुझे पता था कि आप लोग सब यहाँ पे जो है यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, so I should be here actually. सर्वप्रथम हिंदी निकेतन को धन्यवाद करना चाहूंगा और उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस साल भी पिछले और सालों की तरह इस समारोह का आयोजन किया है, जब हिंदी में जो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं, बीएसएल की तरफ से जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं, उसके आज सर्टिफिकेट्स और उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज मेलबर्न में इस विशेष अवसर पर आप सभी के बीच में होने का आनंद ले रहा हूं। हिंदी जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है, जो एक जीवन शैली है जो हमारे धर्म संस्कृति से हमें जोड़े रखती है, विश्व भर में अपनी मिठास और समृद्धि के साथ फैल रही है। आज हम बच्चों को पुरस्कार वितरण और सर्टिफिकेट वितरण के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि यह हमारे विचारों, संस्कृति और परंपराओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यह हमें संसार के कोने कोने में बसे हमारे हिंदी भाषी भाई बहनों के साथ जोड़े रखती है। हमें गर्व है कि मेलबर्न जैसे अंतरराष्ट्रीय शहर में हिंदी अपना एक विशेष स्थान बना रही है। As far as my information goes, there are about 8 Indian languages taught under VSL, Victoria School of Languages, and Hindi is one of them. जहां हिंदी के साथ अन्य 8 भाषाएं भी पढ़ाई जा रही हैं। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में हिंदी का योगदान अतुलनीय है। हमारा उद्देश्य है कि हम हिंदी को और अधिक प्रोत्साहित करें, इसे सीखने और सिखाने के अवसर बढ़ाएं। जिस काम में हमारा हिंदी निकेतन जो ग्रुप है वो वर्षों से प्रयासरत है, उनके अथक प्रयासों की वजह से ये संभव हो पाया है कि इतने सारे बच्चे आज मेलबर्न रीजन में हिंदी पढ़ रहे हैं। और भी लोगों को प्रोत्साहित करें। हिंदी हमारी भाषाई धरोहर है और इसे संजोना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए हम सभी मिलकर सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।